Children, listen. See here. Children, in the last period, we have started regarding the properties of the liquid, right? We have started regarding the properties of the liquid one. Now see, in the yesterday's period, we have seen like this one. That is the solid state particles, and we have also discussed regarding the liquid state, right? We have discussed all these things in the yesterday's period. Now we have to discuss one more thing today. That is nothing but how will you determine the temperature? We have seen the temperature. But do you know what is meant by the temperature? Yes, children. Do you know what is meant by the temperature? Just a minute. Am I audible to you? Yes, ma'am. I'm asking some question. Huh? Do you know what is meant by temperature? Because in solid state also we have discussed that what is meant by the melting point. In liquid state also we have seen that what is meant by the boiling point, right? Yes. Then tell me what is meant by the temperature. बोलो टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर. अगर आपको फीवर आता है तो डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करते हैं ना आपका. हाँ. करते नहीं करते हैं. करते हैं. हाँ, तो बोलो टेम्परेचर क्या होता है. डू यू नो व्हाट इज मीन बाय द टेम्परेचर. वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग. यू मस्ट नो. आप 9th क्लास में हो, आपको टेम्परेचर क्या है ये पता होना चाहिए. देखो मैं बताती हूँ आपको टेम्परेचर यानी कि क्या. अगर समझो मैंने दो गर्म चीजें, एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज एक दूसरे के साथ रख दी. आपको पता नहीं है कौन सी चीज गर्म है कौन सी चीज ठंडी है, राइट. आप कैसे पता करोगे. Just tell me, children, how will you know, how will you come to know that this is the hot object and this is the cold object? गोरखनाथ, आय नो टेम्परेचर मीन्स तापमान. त्याला मराठीतून तापमान असं म्हणतात. हा, चला सांगा. दोन जर वस्तू मी एका जागी ठेवल्या, एक गरम आहे आणि एक थंड आहे. तुम्हाला माहित नाहीये पण त्या वस्तू कोणती गरम आहे आणि कोणती थंड आहे. तुम्ही कसं काय ओळखणार ही गरम आहे आणि थंड आहे. टेम्परेचर. राईट. टेम्परेचर वरून कसं ओळखणार. तुम्हाला काय पाहिल्यावर टेम्परेचर समजणार आहे का. हा, तुम्हाला पाहिल्यावर टेम्परेचर समजणार नाहीये. तुम्हाला काय 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 करावं लागणार आहे. तुम्हाला हात लावून बघावं लागणार आहे की टेम्परेचर किंवा कोणती वस्तू गरम आहे आणि कोणती वस्तू थंड आहे. बरोबर. पण जर समजा दोन गरम वस्तू एकमेकांच्या जवळ ठेवल्या तर हात लावून तुम्ही हे ओळखू शकता का रे की दुसरी वस्तू पहिल्या वस्तूपेक्षा किती गरम आहे. येस, ओळखू शकता का. ओळखू शकता का. नाही मॅम. नाही. मग त्याच्यासाठी आपल्याकडं काहीतरी एक परिमाण असावं लागतं, काहीतरी एक युनिट असावं लागतं किंवा एखादं मेजरमेंट असावं लागतं आणि त्या मेजरमेंटला म्हणतात टेम्परेचर. राईट. मीन्स टेम्परेचर मीन्स व्हॉट.
temperature, it is, what is meant by the temperature? See the scientific definition of the temperature. It is the degree of, it is the degree of hotness of, degree of hotness. It is the degree of the hotness. Means it tells you that how much hot is the object than other, right? That is the measurement, the measurement which tells about, which tells about how much, how much hot is the object, how much hot is the object than other, right? Than that of the other. Bolo, Abhijit, what do you want to say? You raise hand. Yes, Abhijit Sawan. Yes, Abhijit. Have you come to know? Are you there? Yes, tell me by unmuting yourself. Unmute yourself and tell me why you have raised the hand. No, ma'am, no. Have you got this one? समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अब फिर से खुद को अनम्यूट करो, हाँ? It is a degree of hotness, that is a measurement which tells about how much hot is the object than other, right? It is known as the temperature. आया समझ में? It is known as the temperature. In short, we can say degree of hotness, it is known as the temperature, right? In short, we can say degree of the hotness, it is known as the temperature. अब देखो ये जो टेम्परेचर होता है, this temperature governs the, or how it is to be get measured. There are certain units are there for measuring the temperature. Now we have to discuss units for measuring temperature. Unit for measuring the temperature. What are the unit? जैसे कि अगर हमें मिल्क लेना है तो हम मिल्क कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? बोलो, लीटर, राइट? हम बोलते हैं ना आधा लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, राइट? अगर गेहूं मेजर करने हैं तो हम कौन से यूनिट में मेजर करेंगे? किलोग्राम्स। 10 किलो गेहूं लाना है या 1 क्विंटल गेहूं लाना है, ऐसे बोलते हैं ना, राइट? 1 क्विंटल मिल्क लाना है, ऐसे बोलते हैं क्या? यस चिल्ड्रन, 1 क्विंटल मिल्क लाना है, ऐसे बोलते हैं क्या हम? No, ma'am. नहीं. हाँ, तो हम क्विंटल, ये क्या है? इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट. लीटर, इट इज द मेजरिंग द वॉल्यूम, राइट? लीटर, इट इज द यूनिट विच मेजर्स द वॉल्यूम. नाउ वी हैव टू डिस्कस what are the units for measuring the temperature. Remember, for measuring temperature, there are the 3 units are used. There are the 3 units are used one. Which are then? The first unit is that, first unit known as the degree Celsius. Degree Celsius. Okay. Second unit क्या है? Second unit, it is nothing but the degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit. And third unit क्या है? Third unit, it is nothing but the Kelvin. Kelvin, it is the third unit. इसे डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं. अब हम देखेंगे इन तीनों में यानी कि रिलेशन क्या है. डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन is the SI unit of, Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin, it is the SI unit of the temperature. समझ में आया? और सेल्सियस ये बेसिक यूनिट है. अगर हमें थोड़ा सा यानी कि 100 या
200 डिग्री तक का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम सेल्सियस स्केल यूज करते हैं। अगर हमें उससे ज्यादा मेजर करना है तो हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। अगर हमें उससे ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना है तो हम केल्विन स्केल यूज करते हैं। राइट, these are the units for measuring the temperature. And what is the what you say what is the tool which is used for measuring the temperature? We have to see what is a tool for measuring the temperature. Tool or the instrument. What is mean by the tool? Tool means the instrument. बोलो, किससे मेजर करते हैं टेम्परेचर? इंस्ट्रूमेंट। Thermometer. Very good. For measuring the temperature. For measuring temperature. For measuring temperature, we are using the tool that is known as a thermometer. So you followed this one. Thermometer use करते हैं। थर्मामीटर के ऊपर स्केल होता है। आपको थर्मामीटर पता है कैसे होता है, राइट? अब देखो यहाँ पे थर्मामीटर में अब ये जो यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें रिलेशंस कैसे है देखो, राइट? वी हैव टू सी रिलेशंस between relations between units of temperature. अब देखो इसके यूनिट्स कैसे है। आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस कैसे दिखाते हैं? आई विल टेक सम टूल फॉर सी हियर। देखो डिग्री सेल्सियस कैसे दिखाते हैं, एक ऐसे डॉट, राइट, इस तरह का एक डॉट, और उसमें क्या लिखा हुआ होता है? सी। अरे ये क्या हुआ? डिग्री सेल्सियस। एनीबडी इज डूइंग सम मिस्chievous थिंग? सी हियर, डिग्री सेल्सियस। अरे इस तरह से डिग्री सेल्सियस दिखाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे दिखाते हैं? ये डिग्री का साइन हो गया और नीचे लिख देते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कैसे लिखेंगे? एफ। ये हुआ डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन कैसे दिखाते हैं? केल्विन कैन बी शोन लाइक दिस वन। केल्विन कैसे दिखाते हैं? capital K. These are the units for presenting the what for presenting the measurements, or the units for these are the symbols which are indicating the units for measuring the temperature. समझ में आया सबको? Now I will write the relations in between them. मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और relations लिख देती हूँ। अब relation क्या है देखो, see here, relation क्या है? फर्स्ट रिलेशन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, माइनस 32. This is the relation between the degree Fahrenheit and Celsius.
Kelvin is equal to 273.15 plus degree Celsius. Means by using this interconversion, we can able to carry out the conversion of Fahrenheit into Celsius, Celsius into Kelvin. Kelvin and Fahrenheit are not to be related with each other. We can also able to convert the Celsius into the Fahrenheit like this one. That is nothing but I will write the equation for that one. Celsius is equal to डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रैकेट में ले लेती हूँ इसे डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32 multiplied by 5/9. Okay, multiplied by 5/9. This is the relation between the degree Celsius and that of the Fahrenheit. समझ में आया? हेलो चिल्ड्रन, समझ में आया? These are the three units for interconverting the Celsius into Fahrenheit, Fahrenheit into थर्मामीटर नहीं बेटा, थर्मामीटर बोलते हैं उसे. Yes, Ma'am, yes. please repeat. ये डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में का रिलेशन है बीच में का. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into the degree Celsius minus 32. Kelvin is equal to 273.15 plus degree Celsius, and Celsius is equal to or degree Celsius is equal to degree Fahrenheit. यहाँ पे एक्चुअली डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए था. आई विल राइट हियर डिग्री सेल्सियस degree Celsius is equal to degree Fahrenheit plus 32 multiplied by 5/9. अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका. देखो, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह से लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन समझ में आया? एंड केल्विन. अब देखो कैसे करना है इसका इंटर कन्वर्जन, कैसे करना है. देखो कितना दिया है 30. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ ये कैसे करना है. ये देखो वैल्यू कितनी दी है 30, राइट. वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री सेल्सियस, राइट. 30 डिग्री सेल्सियस इतनी वैल्यू दी है. कितनी वैल्यू दी है 30 डिग्री सेल्सियस. अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में. तो पहले हम केल्विन में कर देंगे. केल्विन इज इक्वल टू व्हाट, केल्विन इज इक्वल टू 273.15. Do along with me children. 273.15 plus 30 degree Celsius plus 30 degree Celsius
कितने आ जाएंगे रे बोलो? यस, व्हाट विल बी द एडिशन? एडिशन कितनी आएगी? चिल्ड्रन, टेल मी। 273.15 प्लस 30 कितने आ जाएंगे एडिशन? 300.15. कितनी आएगी? यस, 303.15. 300 by 15. 303.15. वेरी गुड। 303.15 आया क्या समझ में? 303.15। हैव यू गॉट दिस वन? समझ में आया? 303.15। चिल्ड्रन, म्यूट योरसेल्फ। समझ में आया? अब हम देखेंगे फ़ारेनहाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द फ़ारेनहाइट। अब डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि क्या है? आई विल राइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है? 9/5। 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय कितने डिग्री सेल्सियस है? 30 डिग्री सेल्सियस। 30, राइट। ये सब कुछ एक ब्रैकेट में आ गया, -32। सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं बेटा, यहाँ पे +32 है। +32। मैंने रिलेशन थोड़ा सा गलत दिया, +32 है। कितना आ जाएगा इसका आंसर? कितना आ जाएगा बोलो? कितना आंसर आ जाएगा? 86. हाँ, 86 Fahrenheit. 86 degree Fahrenheit. 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे करेक्शन कर लो, हाँ? यहाँ पे माइनस आता है। हाँ, कितना आ जाएगा? कैसे आया? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, राइट। कितना आया? 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। 9 6 जा 54, राइट, विच इज इक्वल टू 54 प्लस 32, राइट। इट इज इक्वल टू 56 प्लस 32। समझ में आ रहा है क्या? Children, those who are unable to do the calculation, please listen. They have done the correct calculation. कितना आया इसका आंसर? 86। वेरी गुड। समझ में आया क्या? यस। Now see here, I am making the correction. Here it is +32. +32. And here it is -32. Okay? समझ में आया क्या? Yes. Shall I give one more example? Children, Yes, ma'am. नहीं बेटा, सेल्सियस कौन है ये? हस्तिका। हस्तिका मोहिते। सेल्सियस जो है वो केल्विन के साथ भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, हैव यू फॉलोड दिस वन? जिग्नेश, हैव यू फॉलोड? नाउ
This is nothing but the temperature. Now you may do for yourself. I'm going to give you some of the things. Convert. I'm going to give you one more problem. Convert convert 120 degree Fahrenheit into Celsius and Kelvin. कर सकते हो क्या? 120 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन. कैसे करोगे सेल्सियस में कन्वर्ट इसको? ये देखो हमारे पास रिलेशन है. ये रिलेशन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, राइट. 120 है तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम? इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट कितने हैं? 120, राइट. 120 माइनस 32, ब्रैकेट को कंप्लीट करो, मल्टीप्लाइड बाय 5/9 इज इक्वल टू. कैसे करोगे? 120 माइनस 32, हाउ मच इट इज? 84, नो? करेक्ट है क्या? या 88? यस. 120 माइनस 32 कितने आ जाएंगे? आंसर दो. अरे सिंपल सा डिवीजन है. 120 माइनस 32 कितने आ गए? 90 9 से आते हैं. 88 क्या कर रहे हो बेटा? 120 माइनस हेलो माइक ऑफ कर. कितने आ जाएंगे? 88, 88 राइट. कितने आ जाएंगे? 88. 88 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, राइट. अब पहले 9 से 88 को डिवाइड कर दो. कितने आ जाएंगे? 88. 9 9 जा 81, राइट. नीचे आ गए 7. पॉइंट ले लो ऊपर का. 9 कितने आ जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली 8.6 या 8.7. अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे 8.7. 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो. कितने आ जाएंगे फिर? 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 5. 5.43.5 कितना आ गया? डिग्री सेल्सियस 43.5. समझ में आया क्या? चिल्ड्रन, हैव यू फॉलोड 88 को 9? हाँ, 9 on mind. 9.7 9.7. हाँ, 9.7 राइट. 9 9 से 81. मैं बोलते वक्त 9 9 से 81 बोली. 9.7 यानी कि 48.5 आ जाएगा फिर, राइट.
समझ में आया क्या? 48.5, 9.7 multiplied by 5, it is equal to 48.5. I hope you have understood all these things well, right? Means you can able to carry out the interconversion between the units of the temperature. Have you followed, children? Now I'm going to switch second one point. I have told you in the yesterday's class the definition for the boiling point, right? Now we have to discuss regarding the gaseous state of the matter, right? Now remember, liquid is forming the vapors. Vapor formation occurs at low temperature also, right? During boiling, first of all, liquid is forming the vapor and then it starts to boil, right? Then it starts to boil. In the yesterday's class, we have seen. If suppose the liquid is forming the vapors below its boiling point, then that kind of the phenomenon, it is known as the evaporation, right? Now see here, vapor formation in liquids, vapor formation occurs at all temperature. See this one. Vapor formation occurs at all temperature. See, vapor formation occurs at all temperature. Mhm. See here, vapor formation occurs at all temperature. But what will happen in this case here? When the vapor formation occurs below the boiling point, very slowly, only at the surface, this slower process is known as the evaporation. Have you followed what is meant by the evaporation? Yes, children. See here, liquid, liquids can form vapors, can form can form vapors at all temperature. When liquid forms, when liquid forms vapor, when liquid form vapor at vapors below its boiling point temperature, boiling point temperature, temperature, it is known as, it is known as, it is known as evaporation. It is known as a evaporation. Have you followed this one? Evaporation. पता चला आपको इवेपोरेशन यानी कि क्या? अब देखो समर सीजन है, समर सीजन में आप लोग थोड़ा सा पानी एक डिश में लेके बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद आपको क्या ऑब्जर्व होगा? बोलो। अगर मैंने एक ब्लेंड डिश में पानी लिया, सॉसर में पानी लेके मैंने बाहर रख दिया, तो क्या होगा? क्या ऑब्जर्व होगा आपको? हाँ, पानी evaporate पानी इवेपोरेट होगा। उसको हमने हीट किया था क्या? हाँ, हमने उसको गैस पे रख के हीट किया था क्या? No. नहीं। तो पानी ने क्या किया? उसकी सन रेडिएशन, सन रेडिएशन से एनर्जी ले ली और वो क्या हो गया? वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो उसको, उस फिनोमिनन को बोलते हैं इवेपोरेशन. वी आर नॉट हीटिंग द
लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट को जब जब हम हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होना ही होना है। लेकिन अगर को लिक्विड सारे टेम्परेचर पे वेपर्स फॉर्म कर सकता है, कौन सा भी लिक्विड सारे टेम्परेचर पे लिक्विड सॉरी वेपर्स फॉर्म कर सकता है। और वेपर्स कहाँ से निकलते हैं? सरफेस से, राइट। मीन्स इट इज रिलेटेड ओनली विद द टॉप द सरफेस। सरफेस कम हो जाता है, देखो टंकी में पानी भरा हुआ होता है, समर सीजन में हमने यूज भी नहीं किया टंकी का पानी, फिर भी क्या हो जाता है? पानी की लेवल कम हो जाती है, राइट। पानी की लेवल कम हो जाती है। आप सुनते होंगे ना, तालाब में का पानी अब थोड़ा सा कम हो रहा है, तालाब ड्राई हो रहे हैं। व्हाई इट इज बिकमिंग ड्राई? बोलो, वो ड्राई क्यों हो रहे हैं? सन के वजह से। हाँ, बिकॉज ऑफ द सन रेडिएशन। फिर तालाब का पानी ऐसे बॉईल होता है क्या रे? हेलो वेपर मैम। में कन्वर्ट होने के लिए तालाब का पानी मैम बॉईल होते हुए देखा है क्या किसी ने? यस, तालाब का पानी बॉईल होता है क्या? मैम प्लीज। तालाब का पानी बॉईल होता है क्या? विदर नो मैम। वाटर बॉइल्स? नो। नो मैम। बट दो इट इज नो नॉट मैम। बॉइलिंग, though it is not boiling, the water level from the lake it is to be goes on decreasing, right? The water level goes on decreasing. तो वो तालाब का पानी कहाँ जाता है? It is converted in the form of the vapor and it is to be get mixed with that of the atmosphere. Have you got this one? And such kind of the phenomenon it is known as the evaporation. उस phenomenon को क्या बोलते हैं? Evaporation. And therefore I have given you the definition for the evaporation as when liquid forms vapors below its boiling point temperature, it is known as the evaporation. Have you followed this one? समझ में आया? This is nothing but the evaporation. देखो, आज हमने यस मैम। लिक्विड स्टेट के बारे में हमने दो चीजें जान ली। कौन सी? लिक्विड्स हैव देयर ओन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड? इन द यस्टरडेज पीरियड ओनली वी हैव डिफाइंड द boiling point of the liquid. What is that boiling point of the liquid we have discussed? That is nothing but the boiling point. It means what? What is meant by the boiling point? When a liquid is heated, see here, see in this case here there is a definition for the boiling point has been given. The temperature at which liquid boils and turns into the vapor, it is known as a boiling point. It is known as a boiling point of the liquid. Have you followed? ये देखो यहाँ तक, the temperature at which liquid boils and turns into the vapor at atmospheric pressure, it is called as its boiling point, right? And here formation of vapors is very fast, occurs not only, see here at boiling point, the formation of vapor is very fast and occurs not only at the surface but also in the liquid. This process observed uh, the as the bubble formation in the liquid, and that is known as a boiling, right? That is known as a boiling. But in this case here, the vapor formation occurs at all temperatures even below the boiling point. This slower process it is known as a evaporation. यानी कि हम बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या डिफरेंशिएशन मिलेगा? सी हियर, we can carry out the differentiation between the boiling point and the top the boiling and the top the evaporation. See, I'm going to give you the definition, the differentiation between the, now see, differentiate between see here, differentiate between differentiate between evaporation evaporation and boiling, राइट? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लिखेंगे पहले इवेपोरेशन,
देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इवेपोरेशन, दूसरी ओर लिख देंगे बॉइलिंग। यहाँ पे लिख देती हूँ बॉइलिंग, बॉइलिंग। राइट। क्या आ जाएगा पहला डिफरेंस? इवेपोरेशन, इट इज स्लोअर प्रोसेस, स्लोअर प्रोसेस of formation of vapors from liquid, from liquid, right? What is mean by the boiling? It is a faster process. It is a faster process of formation of vapors from liquid, right? दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा? इवेपोरेशन, it occurs, it occurs at all temperatures, at all temperatures below boiling point of liquid, below boiling point of liquid, below boiling point of liquid. समझ में आ रहा है? Below boiling point of liquid. But boiling, when it occurs, it occurs, it occurs only at, it occurs only, only at the boiling point temperature of liquid, boiling point temperature of liquid, right? Another one, actually evaporation, it is a surface phenomenon. It is a surface phenomenon. यानी कि जो सतह से surface phenomenon. It is a surface phenomenon. Only surface molecules are participating in the evaporation. और ये boiling क्या है? It is a bulk phenomenon, right? It is bulk phenomenon. It is bulk phenomenon. आपने देखा होगा ना, हर एक लिक्विड का पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है बॉइलिंग में, राइट? बॉटम के ऊपर आते हैं, ऊपर के नीचे जाते हैं, फिर से वो बबल्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि विगरस बबल्स फॉर्म होते हैं, और इट इज ए काइंड ऑफ द बल्क फिनोमिनन. इट इज ए काइंड ऑफ द बल्क फिनोमिनन. एक्चुअली इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. Ma'am, इवेपोरेशन, हाँ बोलो बेटा. what is this? It is a surface phenomena. हाँ बेटा, सरफेस फिनोमिनन यानी कि जो सतह से ऊपर, वेसल के जो ऊपर से जो होते हैं ना मॉलिक्यूल, समझो हमने ग्लास फुल भर के वो धूप में रख दिया, तो वाटर, वाटर की लेवल ऊपर से कम होती है या नीचे से कम होती है? बोलो. वाटर की लेवल ऊपर से कम हो जाएगी या नीचे से कम हो जाएगी? ऊपर से. ऊपर से, तो उसे बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन. लेकिन जब हम उस ग्लास ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो आपने देखा होगा ना, बॉटम के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर, बबल्स बॉटम से आते हैं, ऊपर आके फूटते हैं, फिर से ऊपर के नीचे जाते हैं, यानी कि इट इज ए एवरी लिक्विड मॉलिक्यूल इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द बॉइलिंग. आया समझ में? एवरी लिक्विड मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग इन द बॉइलिंग. और इवेपोरेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ ऊपर के, यानी कि वाटर लेवल के सतह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ही पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि क्लास में देखो, अगर टीचर नहीं है, समझो क्लास में टीचर नहीं है, तो पिछले बेंच का स्टूडेंट अगले बेंच पे आएगा, अगले बेंच का स्टूडेंट पीछे जाएगा, पूरा क्लास, पूरे क्लास में कियोस्क पैदा होता है ना, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, हर एक इधर उधर घूमता रहता है.
इट इज ए बल्क फिनोमिनन। लेकिन अगर टीचर हो और टीचर ने कुछ सवाल पूछा, तो बैक बेंचर्स जवाब देते हैं पहले या फर्स्ट बेंचर्स जवाब देते हैं? बोलो, कौन जवाब फर्स्ट देता है पहले? फर्स्ट बेंच पे जो बैठे हुए होते हैं वो जवाब दे देते हैं, राइट। अगर फर्स्ट बेंच वाले ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो वो हो गया सरफेस फिनोमिनन। लेकिन पीछे के, मिडल के सारे पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं बल्क फिनोमिनन। समझ में आया? सरफेस हाँ एंड बल्क फिनोमिनन। हाँ हाँ, अब देखो, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ऑकर्स, इवेपोरेशन causes cooling, causes cooling, right? While boiling, what do you say? Boiling causes the heating, right? Boiling causes heating, right? While boiling causes the heating. This is the difference between the evaporation and boiling. समझ में आया क्या? अब ये जो लास्ट की लाइन है ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, हाँ, क्योंकि अब 9:47 हो गए हैं बेटा, हमें रुकना होगा। बाकी के लोग भी मीटिंग के लिए वेट करते होंगे, ठीक है? एनी डाउट चिल्ड्रन, एनी डाउट? नो मैम No, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now we will stop here. We will discuss in the tomorrow's class. Okay, I'm going to end the meeting. Okay, यस bye. Have a great day. Yes, ma'am.